Hello students, today we are going to start social science geography chapter number 1. Name of the chapter is Our Environment of class 7th. Let's start. The term environment is derived from French word environner which means neighborhood. इन्वायरमेंट टर्म एक फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव हुआ है जिसका मतलब नेबरहुड होता है. देयरफॉर इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग और कंडीशंस विद इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. देयरफॉर इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग या वो कंडीशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं. और इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. हमारा इन्वायरमेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन. और उसे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एंड सेकंड वन इज़ ह्यूमन. फर्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है फिजिकल और सेकंड है बायोलॉजिकल. दिस इज़ नेचुरल. Okay, so natural environment includes physical and biological environment. Physical environment comprises of non-living or abiotic components like land, water and air. Abiotic environment कौन सा है या physical environment कौन सा है? Abiotic. Physical को abiotic environment भी कहते हैं, component भी कहते हैं, right? और इसका example है land, air and water. It is also known as habitat of an organism. And second one is biological environment. Biological environment comprises of the biotic components like human being, plants, animals and even the microbial organism. Now biological environment, it means the living environment or biotic environment, biotic components, right? और इसका example है human being, plants, animals and even microbial organisms. Okay, and next we are going to study is second one is human environment. पहला होता है नेचुरल, सेकंड होता है ह्यूमन. नेचुरल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल और अबायोटिक, सेकंड इज बायोलॉजिकल और बायोटिक. नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट इज फाउंड बाय human being, their creation, their activities and social, economic, political and other condition in which they live. Human environment actually वो environment है जो human being ने अपनी convenience के लिए क्या किया है, create किया है, या उसकी creations, उनकी activities और इसके examples हो सकते हैं. It includes the human made objects like roads, buildings, human occupations such as farming, industry and human institutions like family, community, educational institute, workplace, political situations and so on. ये सब क्या है, human environment है. Okay, so next is interaction between physical and biological environment. अब फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंटिन्यूस इंटरैक्ट होते हैं. इट मीन्स दे बोथ आर connected. The physical and biological environment are interrelated and there is constant interaction. It means constant connection between the two in the form of transfer of energy and matter. A physical environment और biological environment continuous कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जैसे कि एनर्जीज को ट्रांसफ़र करना या मैटर को ट्रांसफ़र करना. इसका एग्जांपल जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक लैंड, वाटर, एयर. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि ह्यूमन बीइंग, राइट. तो ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. ओके, द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट. नाउ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स of the environment go through a number of changes and any change in one is bound to affect the other. और अगर किसी एक भी, ये फिजिकल हो या बायोलॉजिकल, इन दोनों में से किसी में एक में भी कोई चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा, दूसरे में भी कुछ चेंज होगा. अब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं. Abiotic components, the non-living or physical component of the environment, namely air, water,
नॉन लिविंग और फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट नेमली एयर, वाटर एंड लैंड। और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द लिविंग और बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट नेमली प्लांट एंड एनिमल। ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक टू द इंटर relationship between two components of the natural environment. The physical environment obtains its energy primarily from sun. A physical environment जैसे कि हम बात करें लैंड, एयर और वाटर, ठीक है, वो अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम सन। चेंजेस इन एयर, वाटर एंड और इनडायरेक्टली ड्यू टू सोलर और इवन लैंडफॉर्म फीचर्स occur डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू सोलर एनर्जी। और ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से होते हैं। जैसे कि अगर पानी है तो पानी इवेपोरेट होता है विद द हेल्प ऑफ सन, सोलर एनर्जी, सनलाइट। देन दिस चेंज इन टर्न अफेक्ट द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसके कारण बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इन लोगों में भी, इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में भी चेंजेस आते हैं। द बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंड ऑन अबायोटिक एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। ऑब्वियस, ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन एयर, वाटर, लैंड। सो हम बोल सकते हैं बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंडेंट है अबायोटिक एलिमेंट्स पर फॉर देयर सर्वाइवल। For example, all plants obtain their food from land, water, air and sunlight. All animal gets their food directly or indirectly from plants. सारे ह्यूमन बीइंग्स या ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं लैंड, एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, और सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। The biotic element also affects the physical environment in many ways. For example, plant releases oxygen in the air and burrowing animals dig up the soil and make it loose. अब प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में, और जो ब्यूरोइंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि रोडेंट्स या स्क्वारल्स, ये क्या करते हैं? सॉइल को डिग करते हैं, सॉइल में अ काइंड ऑफ होल क्रिएट कर देते हैं, और उसके कारण जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में a space between them is loose, right? They become loose. Human being with their varied activities like agriculture, cutting of trees, mining, construction of roads, buildings also causes a number of changes in physical environment. अब ह्यूमन बीइंग हम सिंस बहुत सारी तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, इसके कारण बहुत सारे चेंजेस फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि लैंड, वाटर और एयर। नेक्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा है इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं हमने। अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। Land, water, air and living organisms are different constituent of natural environment. Now, land, air, water and living organism. नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? लैंड, एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के। दे ऑल्सो कॉल्ड 4 डोमेन्स और रिलेम्स ऑफ आवर अर्थ, और इसे 4 डोमेन्स और रिलेम्स भी कहते हैं, मतलब 4 स्फीयर। 4 domains of natural environment are: first one is lithosphere, second is hydrosphere, third is atmosphere and fourth one is biosphere. Lithosphere means a piece of land. The solid portion of the earth is called lithosphere. Hydrosphere, all water bodies on the earth. Next, atmosphere, the air around us. Biosphere, the living organism, the living world. ओके, सो ये 4 स्फेयर्स हैं जिसे हम क्या कहेंगे? डोमेन्स कह सकते हैं, रिलेम्स कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लिथोस्फियर।
Lithosphere is the outermost layer of the earth consisting of rock material and soil. Now suppose ये सरफेस है हमारी अर्थ की. अब अर्थ की सरफेस सिंस लेयर्स में डिवाइडेड होती है, सो ये जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, राइट, ये होता है लिथोस्फियर, द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर. और यहाँ पर रॉक्स भी होती हैं और सॉइल भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, rocks like this and soil, rocks and soil is also present there. It is known as the crust of the earth. इसे crust कहते हैं अर्थ की. It include the continent as well as ocean basins. Now इसमें continents भी include है. There are 7 continents, right? And और ओशन बेसिन भी इंक्लूड है. ओशन बेसिन इट मीन्स सपोज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ओशियन, राइट, और यहाँ पे वाटर है एवरीवेयर, राइट, दिस इज़ वाटर. नाउ ओशन बेसिन किसे कहेंगे? वो सरफेस जहाँ पे कहीं तो क्रस्ट होगी अर्थ की, राइट, लाइक दिस, राइट, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, ओशन बेसिन. About 71% of total area of lithosphere is covered by water. और टोटल एरिया 71 है और जो वाटर से कवर्ड है. एंड द रिमेनिंग 29 इज़ ऑक्यूपाइड बाय लैंड. और 29% कितना है? लैंड है. बाकी 71% जो लिथोस्फेयर का पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, दिस माउंटेन्स, राइट, plateaus like this and plains like this are found on the lithosphere. ये सब लिथोस्फीयर पे होते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. इम्पॉर्टेंस. अब लिथोस्फीयर की क्या इम्पॉर्टेंस है? लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस द लैंड सरफेस विच कैन बी पुट to a variety of uses. लिथोस्फीयर हमें लैंड की सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके हम वैरायटी ऑफ यूजेस, मतलब बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं उस सरफेस का, उस पीस ऑफ लैंड का. द सॉइल दैट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. अब जैसे कि हम एग्रीकल्चर के लिए सॉइल को यूज़ करते हैं. द वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट मेक अप द लिथोस्फीयर आर ऑल्सो यूजफुल टू अस. अब रॉक्स और मिनरल्स भी हमारे बहुत यूज़फुल एलिमेंट्स हैं ये, राइट. तो सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? लिथोस्फीयर का पार्ट है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. सेकेंड स्फीयर वी आर गोइंग टू रीड इज हाइड्रोस्फीयर. इट मीन्स ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर. Hydrosphere is a domain or sphere of water. All the water bodies such as the oceans, seas, rivers and lakes together makes up the hydrosphere. Hydrosphere में क्या क्या include होता है? Ocean, seas, rivers, lakes, right? और इनके अलावा भी it also includes ice sheets in the polar region, high mountain regions, underground water, water vapor in the एयर. ये सारी चीज़ें मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स वाटर डोमेन ऑन अर्थ. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, ऑल्सो आइस शीट्स, फिर अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर्स. ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होती हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस. वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ and is useful to us in number of ways. अब वाटर जो है हर तरीके की लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करती हैं. सबके लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है और ये हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन नंबर ऑफ वेज, राइट. दिस
marine life under water. Fresh water, apart from its domestic, agricultural and industrial use, is also used to generate electricity. A fresh water डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज़ के अलावा भी काम में आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में एंड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. So hydrosphere is important to us for domestic, agriculture, industrial use, for generating electricity and means of transport. Now ocean supports marine life, provides us with food and minerals. और ओशन जो सपोर्ट करता है मरीन लाइफ, जैसे कि लाइफ अंडर वाटर, वो प्रोवाइड करता है फूड्स एंड मिनरल्स. moderates the climate at the coastal areas and also serves as international trade routes. और ओशंस भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फूड एंड मिनरल्स, और क्लाइमेट को मॉडरेट करने में हेल्प करते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स में भी काम में आते हैं. नेक्स्ट